Hello children, in this video we will cover new words, their meaning, question and answer and other exercise from the chapter Who is the Greatest from class 6th Maharashtra board. Question number 1. Listen to the stories carefully as your teacher read them aloud. Note down the new words, idea or concepts. Discuss them in the class. Children, for this question, we need to listen or read the chapter carefully and then note down all the new or difficult words that we have found in the chapter. Like I have mentioned some new words and their meaning in the next slides. Similarly, find some new words on your own and search for their meaning. New words and their meaning. Agitated, meaning disturbed. Courtiers, meaning a person who attends a royal court as a companion or advisor to the king or queen. Curious, meaning eager to know, in a proper fix, meaning in a tight corner or in a difficult situation. Stunned, meaning so shocked that one is temporarily unable to react. Flog, meaning beat someone hard. Occasion, meaning a particular time or event. Offending, meaning causing problem. Displeasure, meaning a feeling of disapproval. Patron, meaning a person who gives financial or other support to a person, organization. Scholar, meaning an intelligent and learned person. Lash, meaning strike or beat with a whip or stick. Pose, meaning to ask a question. Nobleman, meaning a man born into higher class of rank or title. Sweetmeats, meaning sweet food. Whip, meaning a stripe of leather fastened to a handle. Word of mouth, meaning passing information orally from person to person. Question number 2. Guess the meaning of the following words and phrases. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और कुछ मुहावरे दिए हैं. हमें उन वर्ड्स का और मुहावरे का मीनिंग लिखना है. तो फर्स्ट वन है अनटोल्ड वेल्थ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेल्थ, अनसुनी अनकही वेल्थ. क्लोजेस्ट टू एम्परर्स हार्ट, एम्परर्स फेवरेट, जो किंग का बहुत पसंदीदा व्यक्ति होगा उसे कहते हैं. ठीक, दैट पर्सन इज क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट. ग्रेव ऑफेंस, सीरियस क्राइम, किसी ने बहुत सीरियस क्राइम किया हो, अपराध किया हो. बैनिश, मीनिंग सेंड समवन अवे फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस एज एन ऑफिशियल पनिशमेंट, किसी व्यक्ति को किसी देश से या जगह से एज ए पनिशमेंट, एज ए दंड उसे वहां से निकाल देना. क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट विथ अ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत, और हमें रीज़न भी बताना है. तो फर्स्ट वन है अकबर वांटेड टू पनिश द पर्सन हु पुल्ड हिज मुस्टैच. तो अकबर उस पर्सन को पनिशमेंट देना चाहते थे जिन्होंने उसकी मूंछों को खींचा. जिसका आंसर है फॉल्स. रीज़न अकबर डिड नॉट वांट टू punish the person who pulled his mustache because he was none other than his grandson. अकबर को पनिशमेंट नहीं देना चाहते थे जिसने उनकी मुस्टैच को पुल किया, क्योंकि वो उनका खुद का ग्रैंडसन था. वो अपने कोर्टियर्स का माइंड देखना चाहते थे. वो उनसे एक क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर जानना चाहते थे.
अकबर थॉट ही वॉज ग्रेटर देन गॉड। तो बच्चों स्टेटमेंट 2 में बोला गया है कि अकबर ऐसा सोचते थे कि वो भगवान से ज़्यादा महान हैं। इसका आंसर है फॉल्स, अकबर ऐसा नहीं सोचते थे। रीज़न, द courtiers wanted to shower praise on the emperor and get some favors from him. Hence, they were saying that Akbar was greater than God. जो अकबर के कोर्टियर्स थे, जो राज दरबारी थे, वो उनके ऊपर प्रशंसा की बौछार करना चाहते थे ताकि वो उनसे कुछ फेवर ले सकें। इसलिए वो लोग बोल रहे थे कि राजा अकबर आप भगवान से भी ज़्यादा महान हैं। पॉइंट नंबर 3, बीरबल थॉट अकबर वॉज ग्रेटर देन गॉड। सो पॉइंट 3 में बोला गया है बच्चों कि बीरबल ऐसा सोचते थे कि जो राजा अकबर हैं वो भगवान से भी ज़्यादा महान हैं, और इसका आंसर है फॉल्स, बीरबल ऐसा नहीं सोचते थे। रीज़न, बीरबल न्यू दैट गॉड वॉज काइंड इनफ टू नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम विच प्रूव दैट ही वॉज ग्रेटर देन अकबर। तो जो बीरबल थे उन्हें पता था कि जो भगवान है, उनका जो किंगडम है, उनका जो साम्राज्य है, वो वहाँ से किसी को भी बाहर नहीं निकाल लेते हैं। क्वेश्चन 4, राइट अ सेंटेंस ईच अबाउट 3 of your friends. Each time you should say what your friend cannot do and yet pay a compliment to your friend. So बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने 3 फ्रेंड्स के बारे में कुछ भी सेंटेंस लिखना है, जिसमें आपको पहले ये लिखना है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, और फिर आपको उसको कॉम्प्लीमेंट भी करना है। सो चिल्ड्रन, इन दिस एक्टिविटी यू नीड टू राइट 1 line अबाउट 3 of your friends. You need to say what your friend can't do and yet it is his quality. तो आपको लिखना है कि मेरा ये फ्रेंड ये चीज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये उसकी क्वालिटी है, ये उसकी अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड रुद्रा कांट लाई बिकॉज ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल देने के समझाने की कोशिश की है, जिसमें मैं पहले ये बता रही हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है रुद्रा जो झूठ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो बहुत सच्चा पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है। सेकेंड पॉइंट, माई फ्रेंड स्वराली कैन नॉट चीट बिकॉज शी इज़ एन इनोसेंट गर्ल। जो मेरी फ्रेंड स्वराली है वो किसी को भी चीट नहीं कर सकती, किसी को भी धोखा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि वो बहुत मासूम और अच्छी लड़की है। पॉइंट 3, माई फ्रेंड अदिति कांट हर्ट समवन बिकॉज शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल। मेरी जो फ्रेंड अदिति है वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती, किसी को भी दुख नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो बहुत दयालु दिल की लड़की है। तो इसी तरह बच्चों आप भी अपने फ्रेंड के बारे में कुछ बोल सकते हो कि मेरा ये फ्रेंड ये चीज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत अच्छा है, या उससे कुछ भी रिलेटेड चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्परर अकबर। हमें एक छोटा सा नोट, कुछ लाइनें, कुछ बातें राजा अकबर के बारे में लिखनी है। तो मैंने लिखी हैं, आप देखिए। फर्स्ट पॉइंट, अकबर वॉज 3rd मुगल एम्परर। तो जो राजा अकबर थे वो मुगल साम्राज्य के 3रे राजा थे। ही वॉज द सन ऑफ 2nd मुगल एम्परर हुमायूं। और जो राजा अकबर थे उनके फादर का नाम हुमायूं था। एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर, अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, अनटोल्ड वेल्थ, बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो जो राजा अकबर थे वो एक बहुत अच्छे लीडर थे पूरी दुनिया में। इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी एम्पायर थी, बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, इसलिए कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट। जो उनके साम्राज्य में लोग थे, जो उनकी प्रजा थी, उसके लिए वो बहुत केयर करते थे, वो अपने लोगों को बहुत केयर करते थे। He had great respect for scholars, writers, poets and artists belonging to different religions. He was a
पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो जो राजा अकबर थे, जो भी इंटेलिजेंट लोग होते थे, कवि लोग होते थे, जो भी आर्टिस्ट होते थे, वो सबको रिस्पेक्ट करते थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों। और वो जो भी आर्ट और कल्चर के लोगों को जितनी भी हेल्प हो सकती थी, वो उनको उतनी हेल्प भी करते थे। The 9 gems और नवरत्ना in his court were famous। राजा अकबर के दरबार में 9 gems थे, यानी कि नवरत्न थे, और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द स्टोरीज इनटू डायलॉग्स एंड रीड द डायलॉग्स अलाउड इन द क्लास। तो बच्चों, जो ये स्टोरी दी गई है उसको आप अपनी क्लास में एज अ रोल प्ले भी कर सकते हो, कि मतलब कोई बीरबल बने, कोई कोटियर्स बने, कोई राजा अकबर बने, और जो सारी स्टोरी है उसको आप लोग डायलॉग्स अपने अपने उसको लिख लो और फिर उसको एज अ रोल प्ले अपनी क्लास में करो। पॉइंट नंबर 7, फॉर्म पेयर्स एंड मेक अ पेयर प्रेजेंटेशन ऑफ एनी वन ऑफ द 2 स्टोरीज। टू डू सो, ईच पर्सन presents only one sentence at a time, and the next one is immediately presented by the partner. Thus, each person in the pair presents alternate sentence without breaking the flow of the narration. So बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, 2 बच्चों को एक साथ पेयर अप करना है और जो भी स्टोरी है उसकी 1 डायलॉग 1 by 1 करके बोलना है, ताकि जो भी स्टोरी है उसका फ्लो टूटे नहीं। पॉइंट नंबर 8, फाइंड एटलीस्ट 5 other Akbar and Birbal stories and share them with your friends. Make a list of the stories collected by the entire class. Put your list in the alphabetical order. बच्चों, आपको इस एक्टिविटी में अकबर एंड बीरबल की 5 स्टोरीज के बारे में लिखना है और एक पूरी क्लास को मिलके एक लिस्ट बनानी है, और वो सारी स्टोरीज के नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। सपोज अगर किसी स्टोरी का नाम ए से शुरू होता है तो वो पहले आएगी, फिर जिसका नाम बी से शुरू होता है वो सेकंड नंबर पे आएगी। मैंने आपको यहाँ पे 3 अकबर एंड बीरबल की स्टोरीज के नाम दिए हैं। एग्जाम्पल, बीरबल की खिचड़ी, जो होता है अच्छा होता है, स्वर्ग से आदेश। पॉइंट नंबर 9, विजिट अ लाइब्रेरी। फाइंड द स्टोरी ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन, गोपाल भांड एंड तेनाली रामन। शेयर देम इन द क्लास। बच्चों, आपको इस एक्टिविटी में लाइब्रेरी में जाकर इन तीनों की, मुल्ला नसरुद्दीन, गोपाल भांड एंड तेनाली रामन की स्टोरीज को पढ़ना है और आपस में शेयर करना है। Children, if you have any doubt related to this chapter, kindly write it down in comment box, and also subscribe, share and like this channel. Thank you.